You said never let me go. So hello and welcome back to my YouTube channel, guys. I know it has been really long since I posted anything, but as I mentioned, after my final review, I was about to post, like that I'll post, not I was about to. So yeah, here I come. Like I just now came back from my flight and I had my final review today, so maybe I'll be posting this video today on 27 or tomorrow on 28. I don't know, it depends on my mood or basically my laziness, because currently I am sleep deprived since 3 days and I really need to sleep. So I'll see if I feel like editing the video, I'll edit it and upload it. वरना तो आपको 28 में मिलेगा, वरना आज के आज ही मिल जाएगा, क्या पता। वो तो वीडियो पोस्ट होने के बाद ही आपको पता चलेगा. So yeah, the video is about इंस्टीट्यूट. मैंने एविएशन इंस्टीट्यूट किया था, तो उसी के बारे में वीडियो है. एंड ये किसको एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में वीडियो है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऑल्सो अबाउट द फाइनल रिव्यू, मेरा मिड रिव्यू था 26 को एंड 28 को हमारा फाइनल रिव्यू था. एंड आई क्लियर्ड बोथ माई मिड रिव्यू एंड माई फाइनल रिव्यू विथ flying colors, guys. My mid review was awesome and I got lot of good feedback from both my communication instructor and from the HR who took our mid review. And yeah, it feels very good to actually announce it that I am in the top 3 and we were the only 3 people who got the green zone. So yeah, there were just 3 people in top 3 who got the green zone and others too did good. We are the batch of 24 people. Sorry, we are a batch of 24 people, and out of it was 25, but one of our batch mates got really sick on the mid-review day, and she had to go back and take a rest, and now she will be in the next batch, and I am really feeling very bad for her, but we can't do anything, circumstances to occur. But yeah, I hope so. She does well in her upcoming batch. Yeah, so currently we are a batch of 24 people, and out of that, on the mid review, we were in the top 3 and I was one of them. Other all were in the yellow zone, a little improvement needed, and we were good to go. So I was really happy, and today was my final review, and even my final review was very awesome. It went smoothly. I got my power question, which was describe your culture, and the interviewer, so how do I explain this? The assessor who took our final review was so intrigued by my conversation, and he was actually enjoying it and he was smiling, and I love to flex my culture because I really love my culture a lot. मैं नेपाली हूँ, as I said before in my introduction video. So मैंने अपने culture के बारे में define किया, and he was so interested that he went on asking that what are the festivals that you celebrate in your culture, and your cultural food, and he was so excited, he was so happy and asking me everything, tell me everything about your culture, I am really interested to know, something like that. And I was happy to answer. I really love talking about my culture. So yeah, so let's move on to the video. So मैंने अपना जो इंस्टीट्यूट का कोर्स किया था, एविएशन इंस्टीट्यूट का, बेसिकली एडुगरी इंस्टीट्यूट ऑफ सिलीगुड़ी, उसमें किया था. एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ रियली गुड इंस्टीट्यूट. एंड किसी का ये रहता है मन में, नॉट किसी का. जब मेरे को मन था एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, तब आई वाज स्केप्टिकल, क्योंकि when I used to scroll and search for YouTube videos ना, so उसमें basically सब कोई बोल रहे थे कि aviation institute is a waste of money and one shouldn't opt for it. But for me, I never felt, क्योंकि for example जो UPSC कोचिंग के लिए दृष्टि एंड राइस बना हुआ है, मेड पे इन दिल्ली, मुंबई एंड आई डोंट नो कहाँ है, एंड कोलकाता में भी है आई गेस. एंड सो वो कोचिंग कहीं पर भी क्लेम नहीं करता है कि आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन करो एंड आप पक्का UPSC एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे. इंस्टेड कोचिंग सेंटर्स और वैसे इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट्स इसलिए बनाए जाते हैं, आई मीन वो सही पाथ में गाइड करे बच्चों को कि लाइक कैसे और किस वे में यू शुड प्रिपेयर एंड हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स. तो वो सब बताते हैं. दे गाइड द स्टूडेंट्स बेसिकली. दे नेवर क्लेम कि हाँ आप ज्वाइन करो आप पक्का यूपीएससी क्रैक हो जाओगे. पर हाँ, और जो बच्चे नहीं हो पाते वो फिर भी जो नॉर्मल सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई और बेसिक गाइडेंस उस वे में होता है. सिमिलरली एविएशन इंस्टीट्यूट भी वही है. वहाँ पर एविएशन इंस्टीट्यूट में कहीं भी क्लेम नहीं करते हैं कि आप ज्वाइन करो हमारे इंस्टीट्यूट एंड 100% जॉब गारंटी है. नो, दैट्स नॉट द केस. क्योंकि व्हेन इट कम्स टू एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स. You have to have a good communication and a good control on your speech and words, and you have to be confident, smart. So that's the thing in aviation industry, and so in hospitality industry, which comes in the same sector. So so basically अगर आप ये वीडियो सर्च करके आए या फिर मतलब अगर आप ये वीडियो उस चीज़ के लिए देखने आए हैं कि कि एविएशन इंस्टीट्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फर्स्टली मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोई स्टेट बोर्ड से है एंड कोई गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए हैं. आई एम नॉट डिमीनिंग गवर्नमेंट स्कूल या फिर कुछ भी, बट नॉट एवरी स्कूल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ गुड फोकस एंड लर्निंग इन द लैंग्वेज इंग्लिश. सो जिन के स्कूल में जो बेस लैंग्वेज इंग्लिश नहीं था उनके लिए आई वुड सजेस्ट फर्स्ट यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल इन एनी ऑफ द इंग्लिश कोचिंग क्लासेस या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस. ये क्लासेस आर अफोर्डेबल. ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी हाई इन बजट. सो 6 months या 3 months के भी कोर्सेज मिलते हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन के स्किल कम्युनिकेशन क्लासेस मिल जाते हैं, लाइक अवेलेबल मिल जाते हैं. तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो. लाइक जिन का स्कूल में कभी भी बेस इंग्लिश नहीं रहा है, लाइक हिंदी में बात करते हैं, नॉट हिंदी में एग्जैक्टली हिंदी में, बट जैसे आईसीएसई बोर्ड में बेस सब्जेक्ट इज इंग्लिश, तो हमारे वहाँ पर कन्वर्सेशन जो चलता है स्कूल में वो मोस्टली इंग्लिश में ही रहता है. सो वी हैव दैट होल्ड ऑन आवर इंग्लिश एंड सेम गोज विद स्टूडेंट्स ऑफ केवी एंड आर्मी पब्लिक स्कूल. सो फॉर देम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जा सकते हैं. बट फॉर दी वन जिनका बेस इंग्लिश नहीं रहा है, आई वुड रियली सजेस्ट देम टू फर्स्ट एनरोल देमसेल्फ इन अ गुड स्किल बेस्ड कम्युनिकेशन क्लासेस जहाँ पर आपकी इंग्लिश को सुधारी जाएगी. एंड वंस यू स्टार्ट फ्रेमिंग गुड सेंटेंसेस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको परफेक्ट सेंटेंसेस फ्रेम करने, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज द की. द मोर सिंपल योर आंसर्स आर एंड द लेस मिस्टेक्स यू विल टेंड टू मेक. सो इसलिए सबसे फर्स्ट जिनका बेस इंग्लिश नहीं रहा स्कूल में, आई वुड रियली सजेस्ट देम टू फर्स्ट गो फॉर कम्युनिकेशन क्लासेस, स्किल्ड कम्युनिकेशन क्लासेस फॉर इंग्लिश, एंड उसके बाद आप ज्वाइन करो अगर आपको मन है. वरना अगर आफ्टर ज्वाइनिंग दी कम्युनिकेशन क्लासेस एंड यू फील दैट या आई एम कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई डोंट नीड एनी सच कोर्स टू एक्चुअली क्रैक द इंटरव्यू, देन आफ्टर completing the course of English communication classes you can sit for the interview and you can crack it. आई एम नॉट सेइंग कि कम्युनिकेशन क्लास करने के बाद आप ये भी कोर्स ज्वाइन करो. इफ़ यू फील योर इंग्लिश हैज़ गॉटन बेटर, तब यू कैन डायरेक्टली गो एंड सिट फॉर दी क्या कहते हैं इंटरव्यू. तो ऐसा है. सो अबाउट दी एविएशन इंस्टीट्यूट, मैं भी बहुत सर्च कर रही थी एंड आई वॉज रियली फॉन्ड ऑफ फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट जब नया नया आया था. एंड आई वॉज अ रूकी क्योंकि मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था एविएशन इंडस्ट्री के बारे में. सो once when I was in class 9th I was watching TV and वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होता था फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट का, अभी भी होता है शायद. सो वो आलिया भट्ट वाला जो एडवर्टाइजमेंट था वो था. एंड सिंस देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट गूगल में, एंड आई इवन टोल्ड माई मॉम कि आफ्टर माई 12th आई जॉइन फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. बट so it wasn't possible. So I was still in the back of the mind I wanted to join Frankfin, like, but my mom was skeptical, as I said, because my mom wanted me to actually sit for UPSC or just nursing. But yeah, my plans were different as I said. So when I passed out from class 12, after that I was looking for interview, and then I came to know, and then I realized but exactly then
At that time I was 17 when I passed out 12, so yeah, I cancelled for interview वाला interview क्योंकि I am not adult. I am not an adult officially, मतलब not adult वाला adult, but I didn't step 18 at that time. So basically I pass out my 12. I'm so sorry, I'm increasing the brightness. So in the year 2023 I pass out my 12 at the age of 17, and so 17 में I pass out मेरा class 12 at the age of 17. So yeah, so I can't actually sit for interview वाला interview because I need to be 18 to actually sit for a cabin crew interview. So इसीलिए my parents also were aware अब तक 12 पास करने तक कि हाँ, she is very dedicated about this particular sector, so ये और किसी में तो ट्राई नहीं करने वाली. So they enrolled me into IGNOU, Indira Gandhi National Open University. So वहाँ से I'm currently also pursuing my English honors. So हाँ, मैं अपना English honors pursue कर रही हूँ currently IGNOU से. So yeah, and that's all about what I did. ठीक है, मतलब what my parents made me do. पर मेरे लिए ऐसा था कि I wanted to do college and said to I'll sit for interview, but then आस्ते आस्ते दिमाग में घुसा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इनकेस अगर कॉलेज में कर रही हूँ और बाई चांस इन बिटवीन दी कॉलेज मेरा हो गया, आई हैव टू मूव आउट. सो पैसे तो खर्च होंगे, साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होगा. सो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एंड आई एग्रीड टू इट लेटर. उसके बाद I started searching for institute. However, my mom was telling that don't do it, just go and sit for the interview. But I was like, no, I want to do. Like I was little, क्या कहते हैं, हाँ हम ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा. तो I was little ज़िद्दी at that time. So yeah, मेरे पापा की मदद के कारण मेरी मम्मी भी मान गई एंड इंस्टीट्यूट देख रहे थे हम लोग. फ्रैंकफिन, ज़ेफर और एडुग्री इंस्टीट्यूट, तीनों इंस्टीट्यूट हम लोग देखे थे. मैं, मेरे पापा और मेरी और एक दोस्त भी गई थी उसके पापा के साथ देखने के लिए. सो तीनों इंस्टीट्यूट देखे, फ्रैंकलिन भी देखा. पर मोस्टली द रीज़न बिहाइंड मी चूजिंग माई एडुग्री इंस्टीट्यूट ऑफ सिलीगुड़ी वाज दैट इट वाज द अपॉर्चुनिटीज़ वर रियली गुड. एंड वहाँ पर बस एविएशन या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में ही नहीं होता है पढ़ाई. दे डू हैव कोर्सेज फॉर IELTS एग्ज़ाम एंड नर्सिंग का भी है वहाँ पर. नर्सिंग से एफिलिएटेड बोर्ड्स भी है या फिर कॉलेजेस भी है. सो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो. वो सिलीगुड़ी में है. आप एक बार सिलीगुड़ी में पहुँच जाए, चेक पोस्ट सिलीगुड़ी का जो चेक पोस्ट है वहाँ पर पहुँच जाना है, फिर PC मित्तल, एंड वहाँ से आप सर्च कर लेना एडुग्री इंस्टीट्यूट. आपको कितना कुछ कदमों में ही दिख जाएगा. बड़ा सा बिल्डिंग है. एंड या फ्रैंकफिन में फ्रैंकफिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरोस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. एंड पता नहीं बहुत सालों से है, अब तो 25 साल से ज़्यादा है. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. एंड या इट हैज़ स्टैम्प्ड इट्स ब्रेन इन एवरी कैबिन क्रू एस्पिरेंट. सो इसलिए लोग करते हैं फ्रैंकफिन में. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ गुड. इट इज़ गुड बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरोस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. हाउएवर उसमें कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं था एंड उसमें भी सेम 100% जॉब असिस्टेंस देते थे. लाइक सी, अब लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 100% जॉब असिस्टेंस एंड 100% प्लेसमेंट. 100% प्लेसमेंट ऐसा है कि आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगा. दैट्स फॉर गारंटी. एंड फॉर 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस या फिर जॉब असिस्टेंस इज बेसिकली आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, वो लोग आपको असिस्ट करेंगे जॉब के लिए. दे विल गाइड यू इन द करेक्ट पाथ्स कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है. वो लोग इंटरव्यू बताएंगे कि कहाँ इंटरव्यू हो रहा है. सो दैट्स कॉल्ड असिस्टेंट. बेसिकली दे आर हेल्पिंग यू आउट, वैसा है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड 100% प्लेसमेंट. सो हर एविएशन इंस्टीट्यूट में कभी भी ये लिखा नहीं रहता है कि 100% प्लेसमेंट. इंस्टेड वहाँ पर ये लिखा रहता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, मतलब दे विल हेल्प अस, दे विल गाइड अस. तो यही है. सो बेसिकली आई वुड हैव चोजन फ्रैंकफिन क्योंकि मेरे को इच्छा था, बट बाद में मेरा माइंड भी चेंज हो गया व्हेन आई विजिटेड द इंस्टीट्यूट Edugri, and the infrastructure was the first thing that attracted me a lot towards it. And the course, I did the course of diploma in tourism
hospitality and aviation management. So after completing the course I can opt for all the 3 sectors. मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, या तो टूरिज्म सेक्टर, या तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और एविएशन सेक्टर. सो वो मैंने कोर्स किया था. एंड लाइक आई डोंट रियली वांट टू शेयर दी टोटल कोर्स का अमाउंट. सो आप वो इंस्टीट्यूट में जाके ही बात कर सकते हैं. एंड सो मेरे कोर्स में ये 3 थे. सो दी बेस्ट पार्ट अबाउट हमारे डिग्री का डिप्लोमा कोर्स में वॉज दे वर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप, 6 months ऑफ इंटर्नशिप. 6 month आपका थ्योरी होता था, उसके बाद दे सेंड यू फॉर इंटर्नशिप एट गुड होटल्स, 5-star होटल्स. नॉट किडिंग, 5-star होटल्स पे भेजा था. आई वेंट टू फेयरफील्ड बाय मैरियट एट जोधपुर अपने इंटर्नशिप के लिए. एंड इंटर्नशिप प्लेड अ मेजर रोल टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड माई कम्युनिकेशन स्किल्स. सो डिड माई इंस्टीट्यूट. The instructors over there were really good and like सब कोई सपोर्टिव थे. ऐसा नहीं कि कोई सपोर्टिव नहीं था. हर चीज़ में लाइक कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर नहीं करना है, हर चीज़ के लिए दे यूज टू मतलब कैसे समझाओ, दे यूज टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन अस, मेड बी ग्रूमिंग. एंड अभी जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ एंड व्हेन आई लुक बैक इनटू माय इंस्टीट्यूट के नोट्स एंड आई फील रियली रिलीव्ड कि मैंने अच्छा किया करके. क्योंकि लाइक माना 100% पढ़ाई जो यहाँ पर ट्रेनिंग में होता है वो कम्प्लीटली इंस्टीट्यूट नहीं बता पाता है, बट एटलीस्ट आई हैव 30% नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ बीन टॉट हियर. एंड यहाँ पर आने के बाद मेरे ब्रीफिंग्स में मेरे को इतनी आसानी हुई क्योंकि आई न्यू दी ब्रीफिंग्स, बस आई नीडेड टू रिवाइज. एंड फर्स्ट एड के बारे में भी है, फर्स्ट एड मॉड्यूल रहता है यहाँ पे. फिर उसके बाद बेसिक इन डॉक मॉड्यूल में भी लाइक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ पार्ट्स में दे हैड ऑलरेडी कवर्ड इट. सो इट्स रियली ईजी फॉर मी आउट हियर टू सर्वाइव, क्योंकि दी स्टडी आउट हियर इज़ वेरी हार्ड, इट्स वेरी वास्ट एंड वेरी लेंदी ऑल्सो. सो या अभी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ मेरे को 700% नॉलेज तो नहीं होगा इस ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट ने भी बस 40% नॉलेज ही प्रोवाइड किया है, क्योंकि उनके पास भी कंप्लीट नहीं करवा पाते. बट जितना हो सका आउट ऑफ 100, 40 to 60% उन्होंने भी हमें प्रिपेयर करवाया है. एंड आई एम रियली लकी एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि हाँ मैंने इंस्टीट्यूट किया. इसके कारण मेरे को यहाँ पर थोड़ी आसानी हो रही है. सो दैट्स द मेन पार्ट दैट माई इंस्टीट्यूट took care of each and everything. एंड जो हमारे वो थे इंस्टीट्यूट के क्या कहते हैं ओनर, बेसिकली नॉट ओनर बट हमारे HR टाइप के समझ लो, दी टॉप मोस्ट सर सोहम सर. इवन ही लव्स मी एज हिज ओन डॉटर. एंड व्हेन आई came back to my institute after getting selected, he welcomed me with open arms, and that was really overwhelming. And they prepared a bouquet for me, and I got वो delivery का celebration का packet, and my dad was also really happy, and I had a good time over there as well. And yeah, he was also very happy when he came to know that I also made through the PhD, and currently I'm at Delhi right now making this video to promote my institute. PS कुछ प्रमोशन के चार्जेस नहीं है, मैं कुछ वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ. आई रियली वांटेड टू शेयर दैट थिंग बिकॉज इट्स अ मेजर पार्ट अबाउट माई लाइफ. एंड ऑल्सो दी अनदर रीज़न फॉर मी जॉइनिंग माई इंस्टीट्यूट बस अब 17 है एंड मेरे को 18 होने में 1 साल लगेंगे. सो मेरा 1 साल वेस्ट ना हो बोल के मेरी मम्मी ने डाल दिया. एंड नाउ इवन माई मॉम सेज कि शी डजंट रिग्रेट पुटिंग मी इनटू एन इंस्टीट्यूट. सो हाँ, सो इंटर्नशिप के लिए तो किया ही किया. एंड आफ्टर दैट इवन इफ हम एविएशन के स्टूडेंट्स इंटरव्यू में नहीं निकल पाए, सो दे वर स्टिल प्रोवाइडिंग अस विद अच्छे होटल्स के इंटरव्यू आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कोर्सेज एंड कमिंग बैक फ्रॉम इंटर्नशिप. वो हमको कहीं पर भी, वो बाकी स्टूडेंट्स को कहीं पर भी इंटरव्यू में बिठा दे रहे थे, जिससे उनको जॉब एनी हाउ मिल ही रहा था लास्ट में. सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. आपने पैसा इन्वेस्ट किया इंस्टीट्यूट में एंड एट दी एंड में आपको जॉब मिल ही रहा है. मेड भी एविएशन इंडस्ट्री में नहीं हो, क्योंकि ऑफकोर्स वो डिपेंड भी करता है ना कि किसने क्रैक किया है या किसने नहीं किया. लेटर ऑन यू कैन गो ऑन ब्लेमिंग टू योर इंस्टीट्यूट कि नहीं हुआ मेरा. सो बेसिकली वो इंस्टीट्यूट आपको गाइड करेगा, बट आपकी कैपेबिलिटी और आपके पोटेंशियल और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही जो 3 मेजर पॉइंट्स है
वो आपको मदद करेगा आपका इंटरव्यू क्रैक करने में। द इंस्टीट्यूट विल गाइड यू, वो आपको सब कुछ बता देगा कि हाउ ग्रूम यू शुड गो, कैसे ड्रेस करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, आपको अच्छे वर्ड सिखाएंगे, आपको लाइक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को हैंडल करना सिखाएंगे। बट एट द एंड इट्स अबाउट यू, कि आप में कितना पोटेंशियल है और आप कितने डेडिकेटेड हो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एंड इवन तो आपका नहीं हो पाया था, एट द एंड में आपको जॉब ऐसे भी मिलेगा। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो दैट वाज द रीज़न। बहुत सोच समझ के एट द एंड में फाइनली आई जॉइन द इंस्टीट्यूट एंड या सो एज आई सेड माय मॉम वाज स्केप्टिकल। सो मेरे मॉम को मनाने में सबसे बड़ा हाथ 2 जन का है। वन इज रेणुका आंटी, उनकी फ्रेंड है मॉम के लाइक यू नो वर्क प्लेस में। शी इज़ मॉम का बेस्ट फ्रेंड ही समझ लो। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू रेणुका आंटी कि उनके कारण मम्मी मान गई, क्योंकि उनको भी पता था लाइक she has seen me growing from my childhood till now, and she also loves me as her own daughter. So she told अब पैसा का मुँह मत देख क्योंकि of course थोड़ा financial conditions वैसे थे। Even though I'm really thankful to my mom and dad that they have sacrificed so much for me to you know pushing me closer towards my dream and actually getting myself enrolled into my dream institute. Not dream वाला dream, but after that EduGree ही मेरा dream बन चुका था घुसने के लिए, like उसी institute में मेरे को जाना था। So actually enrolling me into such a wonderful institute where I made lot of friends and you know I created lot of good memories. So my mom and dad sacrificed a lot उस चीज़ के लिए। So I'm thankful to my mom and dad as well, but most importantly I'm thankful to रेणुका आंटी, क्योंकि उन्होंने ही मेरी मम्मी को समझाया and after that she enrolled me and I'm really sorry आंटी, like अभी तो मैं आपको मिल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा PhD में हो गया and I thought कि मैं आपको मिलने आऊँगी but I couldn't, क्योंकि after I got the result मेरे को जाना पड़ गया उसके नेक्स्ट डे ही। एंड दैट्स वाई हाउएवर मैं अपना 3 months का ट्रेनिंग कंप्लीट करके ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने। एंड थैंक यू सो मच आंटी, हमेशा मेरी मम्मी का ख्याल रखना। अभी मैं दूर हूँ फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मेरी मम्मी बोली है कि शी विल शेयर दिस वीडियो टू यू। सो मेरा मम्मी का ख्याल रखना। और मेरी मम्मी बहुत ओवर थिंक करती है, तो उनको संभालते रहना और समझाते रहना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, आई कैन हैंडल। Apart from that, the second person who played a major role was भानुदा। Like है, मैं वो मेरे को बहन जैसे ही मानते हैं, तो वो मेरे भैया बट वो हमारे गांव के पुरोहित है, like you know पंडित बेसिकली। So yeah, so my mom was skeptical, so है थोड़ी superstitious मेरी मॉम भी, but it's good to be superstitious at times। So वो कुछ चिन्ह दिखाते हैं ना, लाइक सबके साइंस होते हैं ना, तो वो कुछ दिखाया था। तो उसमें भानदादा को बुलाया था। सो उसमें उन्होंने देखा और बोला कि आप बहन के ऊपर जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे उसका डबल मिलेगा ही आपको। सो इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग हर इन एनीथिंग, उसका आउटकम अच्छा ही होगा। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट माई मॉम बिकेम मोर फिक्सटेटेड एंड मोर श्योर कि हाँ डाल ही देते हैं बोल के। एंड उसके बाद मेरे को डाला गया। सो भन्दा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ कि अहिले म जो यहाँ छु। अन्त जुन चाहिँ राम्रो मेमोरिज र जुन चाहिँ राम्रो परिवार जस्तै बन्ड मैले आफ्नो सिलिगुडीमा बनाएर आएको छु, त्यसको पछाडि तपाईँको पनि हात छ। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद कि तपाईँहरूले मेरो माथि विश्वास गर्नुभयो, जसले गर्दा अहिले म यहाँ बसेर त्यसले आफ्नो गाउँबाट यतै टाढो आएर यस्तो भिडियो बनाउन सक्दैछु र आफ्नो गाउँलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैछु। त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु तपाईँको। कृपया यति चाहिँ निवेदन छ, मेरो मम्मी बाबालाई हेरिराख्नुहोस्, किनकि मलाई चिन्ता हुन्छ आफ्नो मम्मी बाबाको। अन्त मेरो गाउँको जति पनि मान्छेहरूले मलाई हेर्दैछ, तपाईँ सबैहरूको आशीर्वाद मलाई दिइराख्नुहोस् ताकि म आफ्नो ट्रेनिङ राम्ररी कम्प्लिट गरेर आउनु पाऊँ। बेसी दिनको लागि त आउनु सक्दिनँ, आएपछि 2 दिनको लागि मात्रै आउनु सक्छु होला, तर आयो भने म पक्का भेट्छु। र मैले भक्कु कुरा सुन्दैछु, मेरो मम्मी बाबाले भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले मेरो कुराहरू गरिबस्नुहुन्छ, सोधिबस्नुहुन्छ, र म एकदम नै ठिकै छु। र मेरो अहिले फाइनल रिभ्यू थाहा आयो 28 मा।
सरी 27 तारिक मतलब आज 27 तारिकमा आज मेरो फाइनल रिभ्यू थियो र मेरो जो मिड रिभ्यू थियो 26मा 26 तारिकमा त्यो दुइटै मेरो भक्कु राम्रो गयो र म टप 3मा आएको छु मेरो क्लासमा। सो यो सुनाउँदाखेरि पनि मलाई भक्कु गर्व महसुस हुँदैछ कि म एउटा सानो गाउँबाट निक्लेर यत्रो ठुलो प्लेटफर्म मैले आइसकेको छु। त तपाईँहरूको माया र आशीर्वाद मेरो माथि दिँदै गर्नुहोस् ताकि तपाईँको गाउँको छोरी अगाडि बढ्न सकौँ। म अब अरू छोरी मान्नुहुन्छ भने छोरी नै मानौँला, बहिनी मान्नुहुन्छ भने बहिनी नै मानौँला, दिदी मान्नुहुन्छ भने दिदी नै मानौँला। र तपाईँको मायाहरू र तपाईँको आशीर्वादहरू मेरो माथि दिइराख्नुहोस् ताकि म आफ्नो ट्रेनिङ राम्ररी कम्प्लिट गरेर आफ्नो गाउँको नाम रोसन गरेर वापस आउनु पाऊँ। अन्त मेरो मम्मी बाबाले कृपया हेरिदिनु होला राम्ररी। मलाई थाहा छ हेर्छ, मेरो दादा दिदीहरू पनि छ, मेरो भाउजूहरू पनि छ, सबैलाई राम्ररी नै हेर्नुहुन्छ मेरो बाबा मम्मीहरूलाई मेरो म नहुँदा त्यहाँ। तर पनि तपाईँहरूको आशीर्वाद दिइराख्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानललाई पनि धेरै धेरै माया दिइबस्नुहोस् ताकि यो अझै बढोस् र म आफ्नो गाउँको नाम अझै रोसन गर्नु पाऊँ। सो या सो द्याट्स अल अबाउट इट, नॉट एग्जैक्टली ऑल अबाउट इट। सो या मैं यही बोल रही थी कि इंस्टीट्यूट बेसिकली आप जैसे मैंने बताया जिसका बेस इंग्लिश नहीं है वो पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस ज्वाइन करे, उसके बाद इफ़ यू स्टिल फील कि हाँ मेरे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन। एंड मेरे एडुके इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। सो बहुत सारे कोर्सेज है, अगर आपको सिर्फ एविएशन वाला ही करना है तो वो वाला भी है, आपको तीनों ही करना है तो वो वाला भी, और आपको बस HM मतलब हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाला डिप्लोमा कोर्स करना है तो आपको सॉरी वो मम का कॉल आ गया था। और आपको अगर हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स भी करना है तो वो भी आपको सेपरेटली मिल जाएगा। बट आई चोज टू डू दी 3-in-1 वाला कोर्स क्योंकि दैट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट, सो इसीलिए। सो हाँ, उसके बाद इंटरव्यू। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट के अलावा भी मेरा और एक वहाँ पे एक अच्छा फैमिली जैसा रिश्ता बन गया, विच वॉज माई PG विच वॉज वेरी क्लोज टू माई इंस्टीट्यूट, लाइक इट वॉज 3 minutes वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट। एंड वहाँ पे जो मेरे आंटी एंड अंकल थे दे वर लाइक माई पेरेंट्स, आई एम नॉट इवन किडिंग, इवन दो माई हाउस वॉज 3 hours फार, मेरे लिए उतना भी फार ही है क्योंकि आई हैव बीन अडॉर्ड बाय माई पेरेंट्स, बाय माई पेरेंट्स that, and most importantly being away from my dad was very hard क्योंकि I'm very close to him. I'm sorry mummy, I do love you but that comes first, you know it. ठीक है, and staying away from my pets were also very hard but I believe आप किसी जगह पे शिफ्ट हो जाते तो ज़रूरी नहीं है कि आप घर से दूर हो, क्या पता उस जगह में जाके भी आपको घर मिल सकता है। तो मेरे को उस जगह में जाके वहाँ पे एक घर मिला, वहाँ फैमिली वाली फीलिंग भी मेरे को आई। वहाँ जो PG के आंटी अंकल थे दे आर लाइक माई अनदर फॉर्म ऑफ मॉम एंड डैड, दे वर वेरी लविंग एंड वेरी वेलकमिंग। सो उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे से रखा है एंड आई डू वांट टू गिव देम समथिंग क्योंकि एंड दे नेवर ट्रीटेड मी एज वो PG का आया हुआ बच्चा है चला जाएगा, बट दे ट्रीटेड मी एज देयर ओन एंड दे स्टिल ट्रीट मी एज देयर ओन। एंड PG में मेरे और भी बहुत अच्छे दोस्त भी बने एंड वहाँ पे मेरे जो 4 भैया है, डॉक्टर भैया, नौरपुदा, टेम संगदा एंड विनीसदा। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि लाइक मेरे को इतने सपोर्टिव भैया लोग भी मिले हैं, नॉट बाय ब्लड बट बाय बॉन्ड। दे आर माई भैया, मैंने उनको भैया मान लिया है, वो मेरे फैमिली के पार्ट है अब, आई डोंट नो। एंड आई रियली वान्टेड लाइक मलाई धेरै आशा थियो कि म योपालि भाइटिकामा तपाईँहरूकोमा आएर हामी पनि टिका लगाइदिन्छु, रक्षाबन्धनमा पनि मैले सकेन। तर यति चाहिँ याद राख्नु तपाईँको बहिनीले कहिले पनि तपाईँ 4 जनाहरूलाई माया गर्नु छोड्दैन र आन्टी अङ्कललाई पनि यो भिडियो देखाइदिनु होला कि म तपाईँ सबैजनाको माथि धेरै धेरै आभारी छु किनकि घरबाट त्यति टाढो आएर पनि तपाईँहरूले मलाई कहिले पनि त्यस्तो फिल हुन दिनु भएन कि म घरबाट टाढो छु। तपाईँले मलाई आफ्नै जस्तै राख्नुभयो र मलाई धेरै भेट्नु मन थियो आउनुभन्दा अगाडि, तर त्यो पनि भेट्नु पाएन। तर म अब यो 3 महिनाको ट्रेनिङ सकेर आएपछि म जरुर भेट्छु। तपाईँहरूको माया र आशीर्वाद मेरो माथि दिँदै गर्नुहोस् र मेरो भिडियोलाई पनि धेरै धेरै माया दिँदै गर्नुहोस्। अन्त तपाईँहरूको ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो हेल्थको ख्याल राख्नुहोस् र यो कहिले नसम्झिनु कि क्रिन्जलले बिर्स्यो भनेर अहिले यहाँ टाइम नै पाएको छैन, पढाइ भएको छ। तर पनि म ट्राई गर्छु अगर टाइम पाएँ भने कलहरू गर्नु, पोता नरिसाइदिनु होला आन्टी अङ्कल र मेरो दादाहरू पनि। र तपाईँको बहिनी र छोरीको माथि तपाईँको आशीर्वाद र माया
दिँदै गर्नुहोस् ताकि म अझै अगाडि बढ्नु पाऊँ लाइफमा. सो that's all about my video. And next video I won't say कि next video क्या हो सकता है, क्योंकि it can be anything. However, I have planned कि इसके बाद मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ. Still it's टाइप ऑफ अ सीक्रेट वीडियो, क्योंकि कुछ बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट समथिंग लाइक iFly से, सो मे बी उसके ऊपर भी वीडियो बन सकते हैं. इसलिए आई एम नॉट एक्चुअली मैंशनिंग कि कौन सा वीडियो नेक्स्ट आने वाला है. सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप showing love. And again, thank you to each and everyone who are still watching me and who are still following me. And as always, do follow my Instagram handle KIINJ and 5 बार you type करना. That's my Instagram handle. So if you have any queries, क्योंकि अगर कुछ चीज़ छूट जाता है तो that can be covered up over there. So you can follow me up there. And also you can subscribe to my channel and do like, share and subscribe. Yeah, I'm saying this for the second time I guess, but yeah, I'm woozing out right now क्योंकि I'm really tired, क्योंकि 3 दिन से नींद पूरी नहीं हुई है. And after this video I'm going to take a shower, I'll freshen up and then I'll head to bed. फिर उसके बाद उठूँगी, खाना खाऊँगी and I'll talk to my mom and dad and then I'll again sleep. And कल मेरा ऑफ है, so इट्स अ रेस्ट डे फॉर मी, क्योंकि 30 के बाद से नया मॉड्यूल स्टार्ट होने वाले हैं. उसके बाद से आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी और बढ़ने वाली है वीडियो में. बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप मेकिंग वीडियोज़. थोड़ा टाइम लग सकता है नए नए वीडियोज़ आने में, बट मेरे को पता है मेरे फॉलोअर्स मेरे को स्टिल सपोर्ट करने वाले हैं. इवन दो दी फैमिली स्मॉल तो क्या ही बताए, अगर 200 जन सामने आ जाए एक रूम में तो वो भी बहुत भयानक वाली भीड़ होती है. सो मेरे लिए मेरा फैमिली बड़ा है, मेरा यूट्यूब फैमिली भी बड़ा है. सो कीप सपोर्टिंग मी. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.